Hey everyone, how are you all? So this is Ayush and I welcome you to Eye Contact CLAT preparation. So the wait is finally over and yes, it's official. The CLAT 2026 exam dates have finally been announced. And not just announced, but it's coming with full confusion, urgency and a buzz across the CLAT community. Every day in my session, students they used to ask me, "Sir, when will the CLAT exam take place? Sir, what's the final exam date? Sir, when will the form filling start?" And today, the biggest announcement for every CLAT aspirant across the country is here. CLAT 2026 exam, it will be held on 7 December 2025. Yes, it is a Sunday and it will be conducted from 2 p.m. to 4 p.m. Earlier, it was being rumored that the exam it might take place on 1st December, but now it's changed. The dates they have been announced. And here's the biggest twist, and I believe many of you already know this, that ALET 2026 was also announced earlier for the same day. Yes, both exams same day. Now we don't know yet how things will play out actually, but one thing is almost very certain, that both exams they cannot happen on same day, and obviously one of them will have to be shifted, and we'll keep you updated the moment that happens. But for now, let's focus on the confirmed fact. So this is straight from the official press release of Consortium of NLUs, as you can already see, and it reads that the executive committee and the governing body of the Consortium of NLUs, that is Consortium of NLUs is the body that conducts this CLAT exam, at their meetings which was conducted on July 20th, means yesterday. So they decided that the common law admission test CLAT 2026, it shall be conducted on Sunday 7 December 2025 from 2 p.m. to 4 p.m. Alright, so the portal for applying for the CLAT 2026 means the registration process, it will start from the 1st August itself, ठीक है. तो आज 21st है guys, means hardly after 10 days जब अगस्त स्टार्ट हो जाएगा तब से लेकर के 31st अक्टूबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है. तो आप लोगों के लिए इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है कि एक तो आप लोग को एग्जाम डेट मिल गई जो कि है 7 दिसंबर, ठीक है. सेकेंडली, एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है? 1st अगस्त से स्टार्ट हो रहा है. कब तक स्टार्ट रहेगा, मतलब कब तक आप अप्लाई कर सकते हो? 31st अक्टूबर तक कर सकते हो, ठीक है. तो यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, आपके पास पूरा अगस्त है, सितंबर है, पूरा अक्टूबर है. तो यू हैव 3 मंथ्स फॉर फॉर्म फिलिंग. तो मेक श्योर कि आप अपना फॉर्म भर लेना. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग कि फॉर्म फिलिंग में आपको क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत रहेगी, है ना. तो वो अभी कंसोर्शियम ने अपनी अभी वेबसाइट पर डाला नहीं है, बट अगर आप लास्ट ईयर का देखोगे क्लैट 2025 यूजी इंस्ट्रक्शंस में आप जब जाओगे तो वहाँ पे आपको ये एक ऑप्शन मिलेगा, डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड विद दी ऑनलाइन एप्लीकेशन. सो आई जस्ट रीड आउट दीज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स विच यू नीड फॉर फॉर्म फिलिंग. ऑल राइट, सर्टेन डॉक्यूमेंट्स यू रिक्वायर व्हेन यू आर गोइंग टू टेक एडमिशन देयर आफ्टर क्लियरिंग द एग्जाम, ठीक है. तो फॉर्म फिलिंग के टाइम आपको रिक्वायरमेंट्स रहती है कुछ डॉक्यूमेंट्स की, कुछ डॉक्यूमेंट्स हो सकता है आपसे बाद में एडमिशन के टाइम पूछा जाए, तो वो तो खैर बात की बात है. फॉर फॉर्म फिलिंग व्हाट डॉक्यूमेंट्स, व्हाट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स यू रिक्वायर. सो आपकी एक मतलब पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ऑब्वियसली सारे डॉक्यूमेंट्स में हम लोग देते ही हैं, ठीक है, प्लेन बैकग्राउंड में. देन आपका साइन, फिर कैटेगरी, अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हो, SC ST OBC का, अगर आप कोई रिजर्वेशन बेनिफिट लेना चाह रहे हो तो उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट. then relevant certificate issued by competent authority if you are applying if candidate is PWD, ठीक है. अगर कोई PWD कैंडिडेट है तो उसके लिए जो भी रेलेवेंट सर्टिफिकेट्स होते हैं जो रेलेवेंट कंपिटेंट अथॉरिटी इशू करती है, ठीक है, वहाँ से वो डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करते टाइम आपको जब फॉर्म फिल करोगे तो वो डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे. इफ़ यू आर समवन हु इज बिलोंगिंग फ्रॉम PWD, देन रेलेवेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी इफ यू आर कमिंग अंडर BPL कैटेगरी, बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी का अगर कोई कैंडिडेट है तो जो भी फॉर्म फिलिंग के टाइम पे रेलेवेंट सर्टिफिकेट्स की जरूरत होती है वो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो, ठीक है. Then a note is also there, that is the original certificates documents issued by competent authority as specified in the brochure are to be submitted to the allotted university in the form and manner as specified by the respective universities at the time of admission, ठीक है. Then the photograph and signature of the candidate need not be attested while submitting the online application form. यानी जब आप ये अप्लाई कर रहे होगे ना उस टाइम पे आपको अपनी फोटो या साइन को सेल्फ अटेस्ट करने की जरूरत नहीं है. देन ऑल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट शुड बी अपलोडेड इन PDF फॉर्मेट ओनली स्टूडेंट्स, ठीक है. मेक श्योर कि PDF फॉर्म में आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो. अब PDF फॉर्म में कैसे कर सकते हो, तो बहुत सिंपल मैं आप लोग को ये भी बता देता हूँ. जैसे सपोज कंफ्यूजन रहता है कुछ स्टूडेंट्स को, जैसे आप लोग की जो फोटो होती है ना वो JPG फॉर्म में होती है, ठीक है, JPG या JPEG फॉर्म में होती है. तो आप सिंपल यहाँ पे जाओ JPG टू PDF, ठीक है. यहाँ पे आप जाओगे तो आप सिंपल मतलब जैसे आपकी अपनी फोटो है या फिर आपकी जैसे साइन की फोटो आपको अपलोड करनी, तो ऐसा नहीं कि आप साइन की फोटो खींचो और अपलोड कर दो, वो JPG फॉर्म में चली जाएगी, वो PDF फॉर्म में मांग रहे हैं. तो आप सिंपल यहाँ जाओ, आई लव PDF, स्मॉल PDF, JPG टू PDF, ये सारे ऐप्स हैं, यहाँ पे आप जाके अपनी JPG इमेज सेलेक्ट कर लो.
जो भी आपकी सपोज यहाँ पे जिस फोल्डर में आपने सेव कर रखी होगी, तो आप वो सेव करोगे, आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। वो पीडीएफ आप बाद में सेव करके अपलोड कर सकते हो। अगेन आई एम सेइंग कि ये जो हम लोग इंस्ट्रक्शंस देख रहे हैं क्लैट 2025 के देख रहे हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शन भी क्या, हम लोग सिर्फ डॉक्यूमेंट्स अभी देख रहे हैं कि व्हाट डॉक्यूमेंट्स वुड बी रिक्वायर्ड। तो ऑब्वियसली बात है, देखो सेम चीज़ें ही होती है, कुछ अगर अपडेशन होगा तो वो पता चल ही जाएगा जब इस साल का क्या कहते हैं, इस साल की जब इंस्ट्रक्शन लिस्ट डाली जाएगी, ठीक है। बट फॉर यू नो जस्ट एज एन ओवरव्यू आई एम टेलिंग यू कि यही डॉक्यूमेंट्स देखो सेम ही रहते हैं, पिछले साल भी यही थे, उससे पिछले साल भी ये थे, इस साल भी ये थे। कोई अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा तो वो फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे जब आएगा, ठीक है। एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन ही भर सकते हो आप, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, एनी ऑप्शन, ठीक है। एप्लीकेशन फी फॉर जनरल कैंडिडेट इज 4,000 रुपीज़, फॉर SC ST BPL PWD कैंडिडेट इज 3,500, ठीक है। एप्लीकेशन फी फॉर जनरल, OBC एंड NRI कैंडिडेट, ठीक है। OBC भी अगर आप हो, NRI भी हो, तो भी 4,000 ही आप लोग को फीस देनी है, ठीक है। देन SC ST OBC के लिए 3,500 है, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेना चाह रहे हो तो अब इसकी खैर रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए क्यों पैसे दोगे आप, वो तो वैसे ही मिल जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन विच यू नीड फॉर नाउ, ठीक है। अब जो आप लोग को एक कन्फ्यूज़न है कि भाई क्लैट का और एलेट का एग्जाम सेम डेट पर पड़ रहा है, तो उस पर जो भी अपडेशन होगा आगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो बॉडीज बैठ के चेंज होगी ये डेट्स, ठीक है। अब जैसे क्लैट का जो मैंने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया, वो देखा है कि क्लैट ना, आप देखोगे लास्ट ईयर भी 1 दिसंबर को हुआ था, 1 दिसंबर वॉज द संडे, ठीक है। उससे पिछले साल भी आप देखोगे तो एक पैटर्न आप देखोगे, जब से क्लैट का पैटर्न चेंज हुआ 2020 के बाद से, कि जो फर्स्ट संडे ऑफ एवरी दिसंबर होता है ना, उसी में क्लैट का पेपर हो जाता है। लास्ट ईयर 1 दिसंबर को होता है क्योंकि 1 दिसंबर को संडे पड़ रहा था। उससे पिछले आप क्लैट 2024 में भी आप देखोगे तो आपको यही रियलाइज होगा। इस साल भी आप देखो तो 7 दिसंबर को पहला संडे पड़ रहा है, तो क्लैट की डेट डाल दी गई तब। इनफैक्ट आप अगर पहले भी देखोगे ना, जब पैटर्न नहीं चेंज हुआ था, जब क्लैट का एग्जाम मई में हुआ करता था, तब भी आप देखोगे कि जो मई का सेकंड संडे होता था ना, हमेशा डेट वो होती थी, वीकली देखा जाता था कि सेकंड संडे ऑफ मई जो होता है वही एग्जाम डेट मोस्टली रहती थी, पैटर्न चेंज होने से पहले, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, या तो क्लैट की डेट चेंज होगी या एलेट की डेट चेंज होगी। मोस्ट प्रोबेबली आई गेस एलेट की होगी, क्योंकि क्लैट और एलेट की पब्लिक सेम रहती है जो एग्जाम देती है, बट देन एलेट को ऑब्वियससली जो है नंबर ऑफ टारगेटिंग स्टूडेंट्स वो कम होते हैं इन कंपैरिजन टू क्लैट, ठीक है। तो आई बिलीव एलेट की शायद डेट चेंज करके एक वीक आगे कर दें, मे बी 13-14 दिसंबर, जो भी, दीज आर जस्ट माई गेसेस। Until unless anything is not official, I would not tell you that, but as soon as any official notification is out regarding that, I'll let you know guys, ठीक है। In case you still have any confusion, you still have any doubt कि regarding anything, regarding syllabus, regarding how you should begin your preparation, feel free to comment that and we'll be very much obliged to help you out, all right. So this was all for today, and for any update regarding this, we'll come up with the relevant video soon. Thank you.